Good morning, student. Myself Chirag Sukani, and I am going to teach you financial management in SY. And we will continue our chapter, that is dividend policy. Okay, and in that there is an Gordon's model of dividend policy. Now, in earlier session we will completed Walter model. What is Walter model? Then some of the calculation part of the Walter's model. Now, in this session, we will discuss a theory of the Gordon's model of the dividend policy. Okay. Now, Gordon model क्या है? Relevance theory का second part है. Relevance में कौन सा था? First is what? Walter and second is what? Gordon model. Now, according to Myron Gordon, okay, according to the Myron Gordon, dividend policy almost always affect value of the firms. यानी it is a relevance theory. So relevance theory says that a dividend policy always affect the value of the firm. So Gordon, so how dividend policy can be used to maximize wealth of the shareholders. यानी डिविडेंड पॉलिसी मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करना और नहीं करना और कितना परसेंटेज डिक्लेयर करना वो कैसे शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज करेगा. ओके, सो दिस मॉडल शोज हाउ द डिविडेंड पॉलिसी कैन बी यूज्ड टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर. ओके, सो उसका ज़्यादा थियरी मोर ऑफ द केसेस वॉल्टर्स मॉडल का जैसा ही है. ओके, so dividend policy always affect the value of the firm, and he show how the dividend policy can be used to maximize the wealth of the shareholders. Clear? Now we all know that each and every model, it is based on certain assumptions. Okay, model is always built, it is based on certain assumption. So first assumptions, no external financing. That means only retained earning are used to finance all investment, and no new debt or the equity is raised. Okay, so only retained earning use होता है to finance all the investment. फॉर्म कोई भी नया इक्विटी और न्यू डेप्ट रेज नहीं कर रही है. ओके, दैट इज कॉल्ड इज व्हाट? नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग. सेकंड assumptions, internal rate of return, that is R, and the cost of capital is K, is what? Constant. Okay, so this model again it is assumed कि internal rate of return as well as K is always remaining constant. Okay, that means what? With additional investment undertaken, the firm business risk does not change. It implies that rate of return, that is R, and the cost of capital, that is K, are constant. Okay, and a firm investment करे, ओके, एडिशनल इन्वेस्टमेंट फॉर्म अंडरटेक करेगा तो भी फॉर्म का बिजनेस रिस्क कोई चेंज नहीं होगा. वो एजम्पशंस लेना है कि विथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट अंडरटेकन द फॉर्म बिजनेस रिस्क डज नॉट चेंज. सो इट इम्प्लाइज दैट कि आर एंड के इज व्हाट? कांस्टेंट. थर्ड एजम्पशंस, द रिटेंशन रेशियो वंस इट इज डिसाइडेड अपॉन ना, इट इज कांस्टेंट. ना व्हाट इज रिटेंशन रेशियो? मैंने आपको बहुत पहले फर्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया था. रिटेंशन रेशियो क्या होता है? फॉर एग्जांपल कंपनी पे आउट करता है, कंपनी क्या करता है? डिविडेंड पे आउट. नाउ डिविडेंड पे आउट करने से किया और उसके बाद जो बचेगा दैट इज व्हाट? रिटेन किया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिटेंशन रेशियो. फॉर एग्जांपल इफ द कंपनी डिक्लेयर 70% एज अ डिविडेंड पे आउट, यानी शेयर होल्डर्स को 70% डिविडेंड दे रही है, सो फर्म ने कितना पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अपने पास रखा? 30%. तो 30% कैन बी कंसिडर एज व्हाट? रिटेंशन रेशियो. यानी फर्म ने कितना रखा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिटेंशन रेशियो. ओके, सो दिस मॉडल एज्यूम दैट रिटेंशन रेशियो वंस इट इज डिसाइडेड ना, it remain constant, it is assumed to be constant. That means what? Retention ratio is assumed to be constant. Thus the growth rate is also constant. Growth यानी B into R. B is what? Retention ratio, and R is what? Rate of return on the firm's investment. Okay, so जितना retain किया उसके ऊपर जो rate of return है, it determine growth of the firm. So growth is what? G. ग्रोथ को क्या हम लोग ने डिनोट किया? G. G is what? B into R. B is what? Retention ratio, and R is what? Rate of return on the firm's investment. Clear? So it is assumed
If retention ratio is constant, so growth rate of the firm is also constant because R is also constant. Clear? फोर्थ एजम्पशन ये मेन एजम्पशन से अच्छे से पढ़ना. सो फोर्थ एजम्पशन क्या है? KE is greater than BR. Okay, now KE is what? The firm cost of capital, it is assumed to be greater than growth rate. BR is what? Growth rate है ना. BR क्या है आपका? Growth rate है. So KE is always greater than the growth rate in order to derive the meaningful market value of the share. ओके, यानी जब भी हम लोग सम्स कैलकुलेट करेंगे प्राइस ऑफ द शेयर्स बेस्ड ऑन द गॉर्डन मॉडल, तो वो केसेस में KE इज ऑलवेज ग्रेटर देन BR, यानी KE इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट होना चाहिए, तो ही हम लोग मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू. ओके, सो दिस द मेन एजम्पशंस इन द वॉल्टर्स मॉडल, सॉरी इन गॉर्डन मॉडल, दैट इज cost of capital is always greater than the growth rate, that is KE is greater than BR. And fifth is what? The firm has a perpetual life or the organization is assumed to have the infinite life. Okay, so this is the same assumptions, okay, the organization remain continue over a long period of time. Yeah. Now criticism of the Gordon's model. Now it is same as of Walters model. We already discussed in Walters model ना, वही आपका कि only this model it is only applicable to all equity firm. Why? कि Gordon model ने क्या assume किया कि firm investment are finance only through the retained earning, यानी firm कोई नया external financing use नहीं करा, that is debt. Okay, that means the model would be only applicable to the all equity firms. Then कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न एजम्पशन सा, सो ये क्या है? अनरियलिस्टिक एजम्पशन है, यानी ये मॉडल ने क्या एज्यूम किया? आर इज व्हाट? कांस्टेंट, बट दिस इज नॉट रियलिस्टिक एजम्पशंस, इट इज अनरियलिस्टिक एजम्पशंस बिकॉज व्हेन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट आर मेड बाय द फर्म ना, आर ऑल्सो चेंज, यानी जितना फर्म इन्वेस्टमेंट करता जाएगा रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म इन्वेस्टमेंट चेंज होता जाएगा. इनफैक्ट आर डिक्रीजेस होता जाएगा एज मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट इज मेड, यानी जनरली टेंडेंसी है कि इनिशियल प्रोजेक्ट में आर हायर होता है, फिर बाद में दूसरे प्रोजेक्ट में आर कम, मतलब जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते जाओगे तो आर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. एंड कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के इज ऑल्सो कांस्टेंट. ओके, एंड अ फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. दिस मॉडल एज्यूम के इज कांस्टेंट, बट फर्म cost of capital does not always remain constant. In fact, K changes directly with the firm's risk. And firm जितना higher risk लेगा, it is assumed कि K high भी हो सकता है. Okay, so K change होगा directly with the firm's risk. So this model के certain criticism है, limitations है. Clear? Now, जो ये effect of dividend policy on the value of the shares respectively for the growth firm, declining firm and the normal firm, it is same as of what? वॉल्टर मॉडल. वॉल्टर मॉडल में जो पढ़ा था वही आपको कंक्लूजन बेस्ड आंसर लिखना पड़ेगा, सेम ही है. ओके, सो मैं अगेन डिस्कस नहीं कर रहा कि व्हाट इज ग्रोइंग फर्म, व्हाट इज डिक्लाइनिंग फर्म एंड व्हाट इज नॉर्मल फर्म. होप सो कि आपके आता है. ओके, ये आपको आना ही चाहिए कि ग्रोथ फर्म यानी आर इज ग्रेटर देन के, डिक्लाइनिंग फर्म मतलब आर इज लेस देन के, एंड नॉर्मल फर्म यानी आर इज इक्वल टू के. ओके, एंड ग्रोइंग फर्म बिकॉज कंक्लूजन में जैसे हम लोग ने वॉल्टर्स मॉडल में सब डिटरमाइन किया ना, आर और के को कंपेयर करके डिटरमाइन किया ग्रोइंग फर्म, नॉर्मल फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म. सो ये गॉर्डन मॉडल में सेम ही है, खाली फॉर्मूला चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है. ओके, सो इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन द वैल्यू ऑफ द शेयर फॉर ग्रोइंग फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म, द नॉर्मल फर्म. चलो फर्स्ट इज व्हाट? ग्रोइंग फर्म. फर्स्ट इज ग्रोइंग फर्म. ग्रोइंग फर्म क्या आपको पता है कि आर इज ग्रेटर देन के. ओके, यानी रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो वो केसेस में ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? 0%. ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? 0%. दैट मीन्स इफ डिविडेंड, इफ पे आउट रेशियो इंक्रीज करेंगे फर्म, इफ पे आउट रेशियो इंक्रीज करेंगे 0% इंक्रीज करता जाएगा, सो मार्केट वैल्यू क्या होता जाएगा?
डिक्रीज होता जाएगा। इन शॉर्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीज करेंगे तो मार्केट वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा इन केस ऑफ ग्रोइंग फर्म। क्लियर? सो ग्रोइंग फर्म के लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगा, 0। जैसे पे आउट बढ़ाते जाएंगे मार्केट वैल्यू कम होता जाएगा, एंड जैसे पे आउट रेशियो कम करते जाएंगे मार्केट वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा फॉर द ग्रोइंग फर्म। क्लियर? सेकंड इज व्हाट, डिक्लाइनिंग फर्म। सेकंड इज डिक्लाइनिंग फर्म। नाउ डिक्लाइनिंग फर्म में क्या होगा, आर इज लेसर देन के, यानी रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म इन्वेस्टमेंट इट इज लेसर देन what the rate which is expected by the shareholder. So वो cases में it is better to pay all the profit to the shareholders. Okay, so optimum payout ratio must be 100% for the declining firm. Declining firm के लिए क्या होना चाहिए, 100%. So if dividend payout ratio increase करते जाएंगे, payout ratio increase करते जाएंगे तो मार्केट वैल्यू क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एंड अगर पे आउट रेशियो डिक्रीज करते जाएंगे तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बिकॉज डिक्लाइनिंग फर्म के लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या है, 100%, मैक्स टू मैक्स। ओके, तो जितना पे आउट बढ़ाएंगे मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, जितना पे आउट कम करेंगे मार्केट वैल्यू कम होगा। क्लियर? एंड लास्ट नॉर्मल फॉर्म है कि आर इज इक्वल टू के. So there is no optimum payout ratio, or we can say any payout ratio is what optimum. Why? Because increase or decrease in the payout, it will have no effect on the value of the share. That means dividend payout ratio increase करेंगे तो भी market value of the share constant रहेगा, and dividend payout ratio decrease करेंगे तो भी market value of the share constant रहेगा in case of the normal firm. Clear? So these are the effect of dividend policy on the value of for the declining firm, growing firm and the normal firm. Clear? And last formula जो आपको याद रखना है, एक ही फॉर्मूला कि प्राइस इज इक्वल टू ई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस बी अपॉन के. ना यहाँ पे भले के लिखा है, के ई भी के ई आपको याद रखना है, दैट इज कॉस्ट ऑफ capital, that is cost of equity mainly, because all the because ये मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल, ओनली इक्विटी फर्म के लिए. ओके, बिकॉज फर्म डेप्ट यूज नहीं करा है, सो यहाँ पे के ई आएगा, दैट इज के ई माइनस बी आर, वेयर पी इज व्हाट, वेयर पी स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ द शेयर्स. ई ये आपको पता ही है, इज व्हाट अर्निंग पर शेयर. देन वन B is what, retention ratio. Okay, so 1 minus B क्या होता है, dividend payout ratio. K is what, cost of capital, that is equity capitalization rate. R यानी rate of return on the investment, and B into R, that is called as what, G, that is called as what, growth rate. आ रहा है समझ में? So यहाँ पे आप हर एक के साथ नोनियो, E is what, earning per share. Now यहाँ पे खाली क्या चेंज हो रहा है, B is what, B is called as what, retention ratio. Now in most of the cases sum में क्या दिया होगा, सम में आपको क्या देते हैं, पे आउट रेशियो. सो एग्जाम्पल, पे आउट 40% है, पे आउट 40% है, दैट मीन्स रिटेंशन क्या होगा, दैट इज 60%. आ रहा है समझ में, रिटेंशन क्या होगा, 60%. Clear? So B is what, retention ratio. Clear? So आपको ये याद रखना है, पे आउट में से माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, रिटेंशन रेशियो. के आपको दे दिया होगा, दैट इज कैपिटलाइजेशन रेट के. बी अगेन रिटेंशन रेशियो, एंड आर बी दे दिया होगा, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म्स इन्वेस्टमेंट. सो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, दैट इज P इज इक्वल टू E into bracket 1 minus B upon KE minus BR. Clear? Now ये सम्स में भी आपको ग्रोइंग फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म एंड नॉर्मल फर्म का कंसेप्ट याद रखना है. सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट अवर कैलकुलेशन पार्ट. क्लियर? बाय, टेक केयर.